Bismillah Rahman Rahim. Welcome back. Okay, so today our goal is to complete the discussion on pre-training objectives and discuss in more detail the pre-training objectives of three main models जो कि हमारे main representatives हैं इस वक्त उन तीनों architectures के जो हमने last time discuss किए थे. So what were the three architectures? Encoder only, decoder only, and encoder-decoder transformers. So we had BERT, GPT and T5 to represent the three. So आज हमारा गोल ये है कि सबसे पहले ये शुरू की कुछ स्लाइड्स हैं हो सकता है कि मैं ज्यादातर ये अभी स्किप कर दूं बिकॉज दीज आर प्राइमरीली मेंट फॉर यू टू रीड ऑन योर ओन इनको हमने डिस्कस करना है स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बर्ड जीपीटी एंड T5 वो हमारा आज का मेन गोल है अगर उस सब कुछ के बाद मेरे पास वक्त बचा तो आई मे कम बैक टू दी स्लाइड्स टू गो ओवर देम वंस विद यू अदरवाइज यू कैन जस्ट रीड देम बाय योरसेल्फ तो ये वही सारे के सारे प्री ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं सो कॉजल जीपीटी में कवर होगा एमएलएम और सेंटेंस प्रिडिक्शन बर्ट में कवर होगा और डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडिंग जो है ये T5 में कवर होगा तो ये तीन हमारे मेन हैं उसके अलावा कंट्रास्टिव लर्निंग अगेन यूज हो रहा होता है किसी हद तक बर्ट के अंदर भी लेकिन हम इनको अलग से आप जब रीड करेंगे तो यू विल फाइंड मोर डिटेल्स इन देयर एज वेल सो आई जस्ट बी स्किपिंग these slides right now. I'll just go to the bird slides and continue from there. I'm just showing you that we have these slides there. Okay, so from the original transformer as we discussed, we have many variants जो कि हम उसके बाद use करते रहे बहुत सी जगहों के ऊपर. We have these encoder decoder models, the full transformer model जो कि originally जैसे कि हमने discuss किया था translation purposes के लिए बना था. जो ट्रांसफॉर्मर हमने क्लास में स्टडी किया था ओके यहाँ से अब नई इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है सो आई वांट योर अटेंशन जो ट्रांसफॉर्मर हमने क्लास में स्टडी किया था इट वाज अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर a form of the transformer where you had your encoder with the attention and the feed forward and then you had your decoder with the self attention the encoder decoder attention and the feed forward ये हमने क्लास में डिस्कस किया था and we also discuss कि attention के ऊपर multiple attention heads हो सकते हैं जो चीज हमने नहीं डिस्कस की वो ये थी कि खुद इस सब कुछ का भी एक लेयर होना जरूरी नहीं है we can have stacked layers of encoders one above the other which essentially means कि आपने एक encoder से सब कुछ गुजारा जहां तक हर चीज बहुत intuitive थी और समझ में आ रही थी but then you take the encoder output which is the self attended and the feed forward output and then you pass it through another encoder and then you pass it through another encoder and you keep doing that for as long as आपका दिल मुतमईन नहीं होता या आपकी computational capability खत्म नहीं हो जाती so basically it's very common to have 6, 12, 15, 20, 24 encoders stacked one top of another अच्छा अब इसके लिए फिर intuition क्या बनाए the same intuition that you developed for your basic neural network as you go from your input layer by layer, you're developing more and more complex and sophisticated representations for that input. So first layer में वो representation सबसे crude है उससे अगली layer में और ज्यादा sophisticated if you remember from the neural networks lecture जो हमने machine learning में पढ़ा था मैंने वहां पे आपको एग्जांपल ये दी थी कि फर्स्ट लेयर में हम लाइंस से डिजाइन कर रहे हैं सेकंड लेयर में ऐसे समझें जैसे हम कर्व्स से डिजाइन कर रहे हैं थर्ड लेयर में यूं समझें कि हम कॉम्प्लेक्स शेप्स से डिजाइन कर रहे हैं so on and so forth if you remember that discussion where we discussed the neural network as the universal approximator so ये वो चीज है जो कि आपको असली ट्रांसफॉर्मर के अंदर मिलेगी so in your real implemented transformers you have multiple layers of encoders and then after the encoding is complete अब ये भी एक आर्किटेक्चरल डिसीजन है आफ्टर द encoding is complete आखिरी एनकोडर की जो आउटपुट है वो डिकोडर के सारी लेयर्स को मिल रही है So this is almost like your RNN sort of an architecture कि ये वाली चीज यहाँ आई है और अब इसकी आउटपुट भी यहाँ जा रही है और ये चीज डायरेक्ट बेस को मिली हुई है एंड देन ये चीज यहाँ भी आ रही है और ये वाली आउटपुट भी यहाँ जा रही है सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑल द वे टू द लास्ट लेयर ऑफ द डिकोडर जो फाइनली फिर एक फीड फॉरवर्ड से गुजर के प्रिडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट वर्ड क्या है या मास्ट वर्ड क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो दैट जस्ट वन part of this information was missing at least in whatever we covered in the class but obviously आप ये सारी चीजें अपने तौर पर papers में भी पढ़ रहे हैं reading assignments में भी so this should not come as a news to you but I just did not discuss it in the class so therefore मैं वो discuss कर रहा हूँ by the way ये diagrams the very nice diagrams are coming from JLMR's illustrated GPT-2 ये इनके कुछ pages हैं which predate the book
तो बुक बहुत बाद में आई है। ये ओरिजिनली मशहूर इसी चीज की वजह से हुए थे, एज फार एज आई नो, द विजुअल ट्रांसफॉर्मर की वजह से। सो ही हैड बीन प्रोड्यूसिंग दीज एवर सिंस द ट्रांसफॉर्मर, ही हैड बीन प्रोड्यूसिंग दीज वेरी नाइस वेबसाइट्स जहाँ पे एनिमेशंस के साथ ही हैज द एंटायर ट्रांसफॉर्मर एंड देन एवरी स्टेप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सो हाईली रिकमेंडेड। अगर अभी भी कोई आपके नॉलेज में कहीं गैप्स हैं, चिंक्स हैं, तो आई वुड रिकमेंड के यू जस्ट गो एंड विजिट हिज at least these two pages, the I think the illustrated or the visual transformer, and then the second one is the illustrated GPT-2. So ये काफी interesting इनके pages हैं. Okay, this is also from there. So this is just more details into that. So here you have so one encoder block, the second encoder block, and so on and so forth. यहाँ पे आपको दो encoders नजर आ रहे हैं और दो ही decoders नजर आ रहे हैं। पहला वाला पूरा खोल के बनाया हुआ है और दूसरा वाला decoder जो है वो खोला हुआ नहीं है, उसके अंदर भी यही सब कुछ है. You like to stare at it for a few minutes, you should. If you want to do it in your own time on their website, and you want to see the animations as well, I recommend that you do. But it's really important that you should be wrapping your head around all of these things, both in terms of how the mathematics will pan out, which is essentially just the recurrence of the same function. उसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा. But how the back propagation is going to work. So when the gradients are going to come back through these stacks of encoders या stacks of decoders, जहां जहां मल्टीपल पाथ्स बन रहे हैं वहां से हमें वही कुछ करना पड़ेगा जो हमने आरएनएन्स के अंदर किया था कि यहाँ तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, तो इस वाले सेम ग्रेडियंट को आपको दो तरफ प्रोपेगेट करवाना पड़ेगा और दोनों तरफ वो ग्रेडियंट जो है वो पीछे फिर बैक प्रोपेगेट होता चला जाएगा. ये वाली डिस्कशन इवन मोर इम्पोर्टेंट होगी जब हम फाइन ट्यूनिंग के करीब से करीब पहुंचते जाएंगे. ओके, सो yeah, so these are the three जो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे. By the way, the sizes of these transformers have been increasing over time. जी जी जी. सो जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स लगे हुए हैं, ये डिपेंड करता है एग्जैक्टली exactly उस आर्किटेक्चर के ऊपर जो ये मॉडल इंप्लीमेंट कर रहा है. दिस कैन बी एनीवेयर throughout the process, and this could be in any number of blocks. So आपको इससे different तरह के architectures नजर आएंगे. So you can think for simplicity that यहाँ से यहाँ तक जो ये जा रहा है, you can just think of it as one layer. So एक ही layer ये ऊपर जा रहा है. But this could be multiple as well. And in the mixture of experts models, there are many of these जो कि in parallel में लेके जा रहे होते हैं. पैरेलल फीड फॉरवर्ड्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं. यहाँ पे स्टैक्ड भी हो सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ लेयर्स भी चेंज हो सकती हैं और ऐसी जगहों पर भी हो सकते हैं जिन जगहों पर ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर नहीं यूज करता. सो थिंक ऑफ द फीड फॉरवर्ड as your okay, think of your transformer as doing two things repeatedly. One, attend to the input, and two, think about it. So transformer essentially सिर्फ दो काम बार बार कर रहा है. किताब खोल के देखता है और फिर सोचता है, फिर किताब खोल के थोड़ा सा और देखता है, फिर सोचता है. सो इसेंशियली ये दो काम है. ये किताब खोल के देखने को हम अटेंशन कहते हैं. सो इट लुक्स एट द इनपुट, ये क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, मैं क्या देखूं. सो दिस इज वेयर इट्स जस्ट अटेंडिंग टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द इनपुट. एंड देन द थिंकिंग पार्ट इज द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. So when you're designing your own transformer or your own model from the scratch, आपने essentially इस बेस पे डिसाइड करना होता है what are the points where I want it to think really deeply. और उस पॉइंट पर यू अटैच योर न्यूरल नेटवर्क. अब यहाँ पे वो सारे का सारा नॉलेज आ जाएगा जो कि होपफुली आप में से जो लोग डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं वो वहां पर कवर कर रहे हैं, या जो बेसिक्स एटलीस्ट हमने बेसिक मशीन लर्निंग में कवर किए थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स की क्या कैपेबिलिटीज और क्या वीकनेसेस होती हैं. Like when do we use a fully connected one, when do we use a pruned one, when do we use and so on and so forth. तो essentially इस सब कुछ में बाकी सारा कुछ जो है ना, एड एंड नॉर्मलाइज या उसके अलावा जो हमने पोजिशनल इनकोडिंग्स की थी, ये वो वाली सारी बातें थी जो हमें रिक्वायर्ड थी इनपुट के कॉन्टेक्स्ट को बाकी रखने के लिए. मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं किस ऑर्डर में हूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बाकी जस्ट इट्स टू थिंग्स, व्हाट्स टू लुक एट and think about it, what's to look at and think about it, and so on and so forth. Okay, this is just वक्त के साथ साथ हमारे ये बढ़ते गए. GPT-2 स्मॉल के अंदर 12 डिकोडर्स थे. सो इट्स अ डिकोडर ओनली मॉडल. इसमें 12 डिकोडर्स एक दूसरे के ऊपर थे. GPT-2 मीडियम के अंदर 124 थे. GPT-2 लार्ज के अंदर 36 थे. GPT-2 एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर 48 हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो जैसा कि मैंने कहा कि हस्बे तौफीक आप जो है वो ऐड करते चले जाते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ डिकोडर्स या नंबर ऑफ एनकोडर्स. जी नहीं, कॉन्टेक्स्ट विंडो का ताल्लुक ताल्लुक इसकी हाइट से नहीं है, इसकी विड्थ से है.
या इनडायरेक्टली यस यू राइट कि जब कॉन्टेक्स्ट बड़े से बड़ा होता जाएगा तो probably it stands to reason कि you need more complex machinery to understand it yeah that stands to reason लेकिन उसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि आपकी बिट्स कितनी okay I think I just added this for this nice uh, animation but obviously you can read it on your own जी So the overfitting problem is not a major issue for us because we are using huge amounts of data which is highly diverse. So हम उसको वहां से कवर कर रहे हैं कि हमारा प्री ट्रेनिंग फेज के अंदर बिकॉज डेटा सेट बहुत बड़ा है और बहुत डिवर्स है सो वो किसी एक ऑब्जेक्टिव पे ओवरफिट नहीं करता हाँ ये प्रॉब्लम हमें फाइन ट्यूनिंग में आ सकता है कि अगर आप फाइन ट्यूनिंग सही से नहीं करेंगे तो हो सकता है वहां पे आप ओवरफिट कर जाएं और वो जनरलाइजेबल ना रहे जिसके लिए ही हम टर्म कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटफुलनेस यूज करते हैं सो दैट्स एसेंशियली कि वो सारे का सारा जनरलाइज मॉडल आप भूल गए और बस इतनी सी चीज याद रह गई और उसे कुछ आता ही नहीं सो वहां पे ये मसले आ जाते हैं बिल्कुल ओके ये सब कुछ कवर हो जाएगा जब हम बर्ड की बात कर रहे होंगे yeah again these just animations I just added them here okay so this is essentially what we'll be talking about now so your BERT जो कि masking use करता है जीपीटी जो कि कॉजल मॉडलिंग यूज करता है और फिर मॉडल्स लाइक बार्ट या हम इसके लिए T5 यूज कर रहे हैं यहाँ पर जो कि स्पैन मास्किंग या स्पैन करप्शन यूज करता है जिसको हम डी नॉइजिंग ऑटो एनकोडर कह रहे हैं ये चीज अभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन द जीपीटी प्री ट्रेनिंग सो हाउ वुड यू ट्रेन योर जीपीटी अब सबसे पहला काम जो मैं आपसे चाहूंगा बिफोर आई इवन रिवील दिस think about what gpt is it's a decoder only transformer think of the objective it's causal language modeling खुद से जरा सोचिए कि इसका पूरा प्री ट्रेनिंग का फेज होगा क्या अब ये पूरा ट्रांसफॉर्मर नहीं है इट्स जस्ट द डिकोडर सो अब आपने इसकी पूरी प्री ट्रेनिंग विजुअलाइज करनी है और उसके बाद एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दीजिए सादी सी जिस चीज को जिस ऑब्जेक्टिव को आप फुलफिल कर रहे हैं थ्रू कॉजल लैंग्वेज मॉडलिंग ये लास्ट टाइम मैंने लिखी हुई थी बाय द वे एज्यूम क्रॉस एंट्रोपी लॉस और उसके थ्रू इस चीज को पूरे का पूरा बिल्ड कर दें तो लॉग लॉस के थ्रू जस्ट राइट आउट एन इक्वेशन एंड विजुअलाइज द होल प्री ट्रेनिंग किस तरह से होगी यू हैव 3-4 मिनट्स मैंने एक आध से पूछ लूंगा उसके बाद द प्राइमरी गोल इज जस्ट टू गिव यू टाइम टू डाइजेस्ट इट बिफोर वी डिस्कस इट हियर जी जनाब थॉट्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू वी नीड फॉर द प्री ट्रेनिंग क्या चाहिए होगा जीपीटी की प्री ट्रेनिंग के लिए डेटा की क्या फॉर्मेशन चाहिए होगी if you think the answer that you're about to give is too simple to be an answer still try it might be that so a lot of text ठीक है and then what would be the pre-training objective next token prediction predict the next token okay once you okay so you just have a decoder you started out by writing so you have the entire internet text so let's assume a huge text file containing the entire internet text you're starting from the beginning of it you provide your decoder now the decoder is completely untrained all matrices are initialized randomly you provide it with the start of sentence token and it says a word it predicts a word right उसने एक वर्ड जो आउटपुट किया है ये वर्ड जरूरी नहीं है कि इंटरनेट का पहले वर्ड के इक्वल हो विच इज फाइन जिसकी बेस के ऊपर लॉस निकलेगा लॉस निकलने के बाद बैक प्रोपेगेट होगा थ्रू द डिकोडर लेयर्स और सारी की सारी मैट्रिसेस को जाकर वो फॉर एग्जांपल इंटरनेट का पहला लफ्ज था आई डोंट नो स्टूपिड the internet started with the word stupid. I don't know. It was a story or whatever. Okay. And the real word that your transformer predicted was by. By. It's an untrained transformer. It can say anything. So you have one softmax जिसके अंदर बाय की probability high है और बाकी की कुछ और probability है. The real word was stupid. So therefore it's going to find the cross entropy loss between this stupid and by. और गोल क्या है बाय की probability कम हो जाए और स्टूपिड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए इस चीज के अराउंड ग्रेडियंट निकलेगा वो ग्रेडियंट बैक प्रोपेगेट होगा थ्रू द फीड फॉरवर्ड लेयर्स देन थ्रू द अटेंशन लेयर्स
जिसका मतलब ये है कि आप क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस के अंदर जा रहे हैं और हर एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स के लिए एक एक ग्रेडियंट निकल रहा है. सो द ग्रेडियंट कीप्स गोइंग बैक फॉर एवरी वेक्टर, वो फिर स्प्लिट होता है उसी तरह से. इट फाइंड्स द प्रोपोर्शन ऑफ द इनपुट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंट्री into the final loss. If you remember our discussions, जिसके अंदर हमने वो निकाला था कि अगर आपने WhatsApp का एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और उसके बाद 10 दिन बाद पता लगा एक्चुअली, एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि सब कुछ में आपका कितना कसूर है, तो यू डू अ बैक प्रोपिगेशन बेसिकली, and that gives you your proportional input into that final thing that happened. तो बिल्कुल उसी अंदाज से आपका पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मर में वो लॉसेस चलेंगे. ओके, नाउ व्हाट, योर डिकोडर इज ऑटो रिग्रेसिव. इस मौके पर व्हाट्स गोना गो इनटू द सेकंड स्टेप? जी, द राइट वर्ड. सो विच मीन्स कि अगर हम ये assumption लेते हैं तो हम टीचर फोर्सिंग कर रहे हैं. सो टीचर फोर्सिंग के करेक्ट वर्ड अगले वाले में गया, यानी द वर्ड स्टूपिड गया, जिसकी बेस के ऊपर उसने वर्ड प्रिडिक्ट किया. वो जो वर्ड उसने प्रिडिक्ट किया, हमने इंटरनेट के असली सेकंड वर्ड से उसे कंपेयर किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इस बेस के ऊपर दोबारा से वो वापस गए हैं, सारे के सारे ग्रेडियंट्स, सारे का सारा बैक प्रोपिगेशन हुआ है और सारी मैट्रिसेस जो है वो अपडेट हुई हैं. You keep doing like this again and again and again and again for the entire internet text, and once you're through that, that's one epoch. You've completed one epoch of training. Then you start again maybe फॉर अ सेकंड इपॉक. अगर इसकी परफॉर्मेंस वहां तक नहीं पहुंची है जहां तक पहुंचाना चाहे थे, यू गो फॉर द सेकंड इपॉक. ओके, ये हो गया हाई लेवल पर. अच्छा, एक चीज जो बहुत जरूरी है, लाइक जस्ट स्टोर इट समवेयर in an important place in your head. Whatever we are covering about GPT and BERT and T5 here is just a sliver from the top, and we're just covering some really important aspect of that model, not the details. And trust me, the real fun or the devil is in the details. सो अगर आपने ये पढ़ना है ना सचमुच में ट्रेनिंग कैसे हुई थी, तो उसके अंदर बहुत से छोटे 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 डिसीजंस होंगे जिसके पीछे ऑथर्स ने कभी एब्लेशन स्टडीज की हुई होंगी कि हमने ये भी ट्राई किया, ये भी ट्राई किया, ये भी ट्राई किया, ये बेहतर चल रहा था. या उनकी सिर्फ गट फीलिंग होगी कि जी हमने यहाँ पे 6 एनकोडर्स लगा दिए या हमने यहाँ पे 10 एनकोडर्स लगा दिए. सो इट्स आइदर देयर गट फीलिंग्स अबाउट थिंग्स व्हिच दे फील आर नॉन कॉन्सिक्वेंशियल इन द सेंस कि जी बढ़ गया तो बेहतर होगा, अगर कम एनकोडर होंगे तो बुरा होगा. इफ दे हैव फीलिंग्स लाइक दैट, तो वो एनी नंबर वहां पे यूज कर लेंगे, या ये कहेंगे कि हम इतने ही यूज कर सकते थे, हमारी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी इतनी थी कि हम इतना ही यूज कर सकते थे, समथिंग लाइक दैट. Those details are really important if you want to understand the actual implementation level details. ठीक है, जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं कि जीपीटी में है क्या इन जनरल, विच इज गोइंग टू बी कॉमन अक्रॉस ऑल जीपीटीज जितने भी आप उसको देख रहे होंगे. तो इसलिए ये नहीं समझना कि जो क्लास में कवर हो रहा है इसमें सारा कुछ कवर हो गया. नॉट इवन क्लोज. आई नीड मे बी अ 2 hour लेक्चर to cover one paper, maybe like just GPT-1, जिसके अंदर मैं खाली उसकी details cover कर रहा हूँ, and then so on for every GPT, so on and going forward. By the way, such lectures are available. If you are interested, one really good resource is Andre Karpathy's Implementation, जहाँ पे वो पूरा scratch से पूरे का पूरा GPT implement करता है. So अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं, highly recommended that you should do those things, और आपका confidence बढ़ता जाएगा. जी. राइट. सो देखिए, इनमें यूजुअली ये जितने भी मॉडल्स हैं ये कभी भी वन हॉट इनपुट में यूज नहीं करते हैं, ये हमेशा एम्बेडिंग यूज करते हैं. सो थिंक ऑफ दैट, जस्ट एड्स अनदर लेयर बिफोर द लेयर जो ट्रांसफॉर्मर की थी, उससे पहले एक और लेयर है. शुरू में वन हॉट ही है क्योंकि वर्ड रिप्रेजेंट वन हॉट से ही होता है, लेकिन उसके बाद फॉरन एम्बेडिंग आती है, ट्रांसफॉर्मर को इनपुट में एम्बेडिंग पास होती है. Yeah. वो एम्बेडिंग्स के बीच में निकल रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल. जी. या 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 That word represents the probability or the expectation that how language starts at the beginning without any context. गुफ्तगू शुरू कैसे होती है? There are certain words of English which are more probable to occur at the beginning of language, at the beginning of a discourse, of an essay, of an email, whatever, or there are certain words which are less probable. So वो उनके बेस के ऊपर एक सॉफ्ट मैक्स निकाल के लाता है कि इनमें से कोई वर्ड होगा जिससे बात शुरू हो रही होगी. So if you ask a generative model, say something, the first word that it has to say has to be a word जो के beginning में आ सकता हो. It should not start with an, I don't know, by, or I don't know, कोई ऐसा word जो दरमियान में आना ज्यादा मुश्किल होता है. Okay, so your generative pre-trained transformer. Now you can understand all three terms.
इनका मतलब क्या है? It was introduced obviously by OpenAI. It uses auto-regressive pre-training, training a transformer decoder to predict the next token in a sequence, the causal language modeling objective. So BERT जो हमने इसके बाद डिस्कस करना है जो कि बाई-डायरेक्शनल है, GPT यूनिडायरेक्शनल है और वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट प्रोसेस कर रहा है. So original paper showed that the decoder-only transformer pre-trained on language modeling could be fine-tuned to achieve strong results on NLP tasks. So initially जो papers आ रहे हैं ना, जो अगर आप जाकर पढ़ते हैं BERT का पहला पेपर या GPT का पहला पेपर, उस वक्त सिर्फ जिस चीज में ये लोग इंटरेस्टेड नजर आते हैं वो ये चीज थी कि हम कोई ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं जो कि एक ट्रेनिंग फेज से गुजरेगा जिसे प्री ट्रेनिंग कहते हैं और उसके बाद ये किसी भी पोस्ट ट्रेनिंग फेज से गुजर के किसी भी काम को कर सकता है. सो दे जस्ट ट्राइंग टू प्रूव द वर्सेटैलिटी कि ये चीज मुमकिन है. ये चीज आपको T5 में भी मिलेगी. दे आर शोइंग द वर्सेटैलिटी कि ये एक T5 जो है ये ढेर सारे काम कर सकता है. इसी तरह जीपीटी प्री ट्रेन होने के बाद पोस्ट ट्रेनिंग में किसी भी काम के ऊपर फाइन ट्यून हो सकता है. बर्ट के अंदर भी दे ट्राई टू शो अ वेरी सिमिलर कैपेबिलिटी. तो ये एक चीज है जो बार बार आपको रिपीटेड नहीं मिलेगी. इस वक्त शायद हम जिस एरा में हैं हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि एक लैंग्वेज मॉडल कितना क्रिएटिव है, कितना प्रिसाइज है, कितना क्या कुछ है. उस वक्त इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि एक लैंग्वेज मॉडल इवेंचुअली enables a downstream task, a classification, sentiment analysis, or whatever task, and makes it super easy to implement. तो ये एक बहुत जरूरी चीज थी भी है भी, लेकिन जरा थोड़ी सी इसकी बात अब कम होती है. Okay, so this is your objective. This is the objective that we're talking about. So आपका loss for causal language modeling is essentially it goes over the entire sequence जिसकी length t है और आप predict ये कर रहे हैं you're finding the probability of the token xt given the context x1 to xt minus 1. ठीक है. So ये आपका पूरे का पूरा अगर इस probability को आप maximize करना चाह रहे हैं, इसे बढ़ाना चाह रहे हैं, therefore आप इसके negative log को यहाँ पे minimize कर रहे हैं. ठीक है. So that's the you're minimizing the loss, you're maximizing the probability. जी. या क्या चीज accumulate कर या जी कंप्लीट लॉस निकाल रहा है पूरे सीक्वेंस के ऊपर. या यस. सो ये जो लॉस लिखा हुआ है ये कंप्लीटली बैच के अंदाज से लिखा हुआ है. वी कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप. वी कैन डू इट एट रेगुलर पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उसे ये कई तरह से इंप्लीमेंट होता है. यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्रॉस एंट्रोपी लॉस लिखा हुआ है. या okay, so the transformer decoder achieves this by masking, self attention. ठीक हो गया. ठीक है. ये सारी चीजें आपको पता है. या सो ये एक चीज जो कि बेसिकली खाली इम्प्लीमेंटेशन लेवल डिटेल है. इसका थ्योरी से तो बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है. कि अगर आपका रेफरेंस टेक्स्ट ये था तो इनिशियली आप इसको ये बना देते हैं, एक स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टोकन इसके शुरू में डाल देते हैं क्योंकि ये वाली चीज अब लाइन अप होगी फर्स्ट प्रिडिक्शन आउटपुट के साथ, ना कि ये फर्स्ट एलिमेंट है. तो सबसे पहले आप एक स्टार्ट ऑफ सेंटेंस देंगे तो ये इसको आउटपुट करेगा. तो हमेशा एक शिफ्ट आपको शुरू में लगाना पड़ता है जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो. ये इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल है. Okay. Do I have anything else interesting here? Yeah, these are just some of the details. 12 layer decoder यूज हुआ था इसके अंदर. इतनी dimensional hidden size था. 12 attention heads थे and so on and so forth. These were just the decisions that they took. ये स्लाइड में मैंने इसलिए चीजें डाल दी हैं कि आप अपने तौर पर इनको पढ़ लीजिएगा. You can also use other resources to read this. GPT-2 के अंदर ज्यादा बड़ा मॉडल था. इतने पैरामीटर्स थे, इतनी लेयर्स थी, इतनी डायमेंशंस थी. GPT-3 के अंदर इतना था, 175 बिलियन पैरामीटर्स तक ये आ गए थे and so on and so forth. So it keeps growing steadily until GPT-3. GPT 3.5 के बाद से फिर मेजर आर्किटेक्चरल चेंजेस शुरू हो जाती हैं जो कि फिर बाद में डिस्कस करेंगे. जी जी. You're absolutely right. That was the most general form of it जो कि यूज नहीं हो रही होती. इसमें दो तीन चेंजेस आएंगी. एक तो आएगा या तो आप इसे स्टोकेस्टिक कर देंगे जिसके अंदर आप हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल के बैक प्रोपेगेट कर रहे होंगे फॉर ईच टोकन, या आप इसको बैच कर देंगे विच मीन्स कि वो 1 से लेकर टी तक नहीं जाएगा, वो कोई आई से लेकर जे तक जाएगा. या जो सही वर्ड दे रहे हैं और बैक प्रोपेगेट नहीं करना पड़ता उसको. या राइट क्योंकि बीच में कोई रिकरेंस नहीं है, कोई स्मूदी पासिंग नहीं है, लिहाजा सिर्फ वही जो करेक्ट इनपुट गई है उसी की बेस पे आपने इसको एक्टिवेट किया है. और जो वापस बैक प्रोपेगेट होगा वो सिर्फ उसी लेयर के अंदर होगा, उसी यानी उसी पार्ट के अंदर होगा. उससे पीछे ले जाने की जरूरत नहीं, वो वहीं रुक जाएगा
क्योंकि टीचर फोर्सिंग ने ये इंश्योर कर दिया कि इनपुट करेक्ट थी, लिहाजा इससे पीछे कुछ प्रोपेगेट करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोपेगेशन उससे पिछले पॉइंट पे डील हो गई, सो इट्स स्टेप बाय स्टेप, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। जी। एम्बेडिंग तक अपडेट होगा, बिल्कुल। ऑल द वे डाउन टू, यानी इनपुट से ऊपर वाली लेयर जो एम्बेडिंग लेयर है वहां तक हर चीज अपडेट होगी। तो एम्बेडिंग साथ साथ अपडेट हो रही है, ये इसी पूरे प्रोसेस के आखिर में जब जीपीटी कंप्लीट हो जाता है तो वी जस्ट डोंट गेट द एंटायर आर्किटेक्चर व्हिच इज नाउ ट्रेन्ड, वी आल्सो गेट द ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स जिनको हम जीपीटी की एम्बेडिंग्स कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, डू आई हैव एनीथिंग एल्स दैट आई वुड लाइक, बिकॉज देखिए मैं हिस्ट्री को कवर करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये चीजें आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वो आप खुद से देख लीजिएगा क्या क्या कुछ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड के, या इसके मैंने कुछ वेरिएंट्स भी डाल दिए थे। वन गुड वे टू, इफ यू वांट टू एक्सपेंड योर नॉलेज ऑन एनी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, आपको साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि बेस मॉडल क्या था, उसके वेरिएंट्स क्या थे, ओपन सोर्स वाले कौन से मॉडल्स थे, उसके उन वेरिएंट्स के अंदर कंट्रास्ट क्या था, कंपैरिजन क्या था। सो या यू कैन डू ऑल ऑफ दोस डिफरेंट स्टडीज, बट यहाँ पे हमने खाली बेसिक को कवर करना है जी। हम्म। नहीं, सो अभी वी आर assuming here कि we start out with randomly initialized embedding matrices. So initially word के टोकन सारे के सारे मौजूद हैं जो कि आपने जिस पर टोकनाइजेशन की थी उसकी बेस के ऊपर आपके पास बन गया है, लेकिन embeddings randomly initialized हैं। तो जब ये जीपीटी पूरा ट्रेन हो रहा है तो उससे जो embeddings ट्रेन साथ साथ हो रही हैं वो जीपीटी की embeddings है। But at some point if you replace the embeddings with a different embedding scheme, तो आपको बीच में कोई ट्रांसलेशन लेयर्स डालनी पड़ती हैं, एक तो डिमेंशंस बराबर करने के लिए, दूसरा जो एम्बेडिंग्स की मैपिंग के लिए, क्योंकि दो एम्बेडिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स कंसिस्टेंट नहीं होती हैं एक दूसरे से कंपैरिजन के लिए, आइदर यूज वन और यूज द अदर। सो इफ यू रिप्लेस इट देन यू नीड टू रिप्लेस ऑल प्लेसेस जहां जहां वो एम्बेडिंग्स यूज हो रही हैं। वो उसी नहीं नहीं, सो जो इनिशियली निकाल रहा है वो रैंडम एम्बेडिंग के साथ निकाल रहा है। सो रैंडम इधर है उधर भी रैंडम है। और जो अगर आप क्रॉस एंट्रोपी लॉस की बात कर रही है ना, तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस जब भी निकलता है वो हमेशा उस सिंगल वर्ड के अगेंस्ट निकलता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन वन हॉट ही रखनी पड़ती है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। बिकॉज उस पॉइंट पर एक से ज्यादा वर्ड हो नहीं सकते थे ना, तो दैट वर्ड द करेक्ट आंसर अकर्स विद प्रोबेबिलिटी वन, एंड एवरी अदर वर्ड अकर्स विद प्रोबेबिलिटी जीरो बिकॉज वी नो द गोल्ड आंसर। सो वहां तो उस साइड के ऊपर तो वन हॉट ही होता है, इस साइड पे एम्बेडिंग होती है। जी। या या देखें वो जो मैंने कहा था ना एम्बेडिंग इनपुट में जाती है, उसका मतलब सिंपली ये होता है, देखें वर्ड की रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ वन हॉट ही हो सकती है जब हम किसी एक खास वर्ड की बात कर रहे हैं, तो वो वर्ड एग्जिस्ट करता है। उस वर्ड को अब इस आर्किटेक्चर में रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड द एम्बेडिंग। नाउ आइदर द एम्बेडिंग कुड जस्ट बी सप्लाइड थ्रू द इंटरनल्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जहां पे हम एम्बेडिंग्स हमने कहा था मैं कौन हूं और मैं कहाँ हूं वहां पर, या यू प्रोवाइड अनदर लेयर जहां एम्बेडिंग आ जाती है एंड देन इट्स अ मोर सोफिस्टिकेटेड रिप्रेजेंटेशन इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर, so that embedding looks up another embedding after that. तो ये दो अंदाज से इसका हो सकता है, तो ये दोनों चीजें आपको लिटरेचर के अंदर मिलेंगी, बट इसेंशियली कीपिंग योर अंडरस्टैंडिंग सिंपल, वर्ड की जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो वर्ड है क्या, वो वन हॉट ही है कि मैं कौन हूँ, सो दैट्स लाइक वन वर्ड एंड एवरीथिंग एल्स इज जीरो। उसकी एम्बेडिंग रिप्रेजेंटेशन किसी एक आर्किटेक्चर के अंदर है, बर्ड के अंदर कोई एक एम्बेडिंग है उसकी, जीपीटी के अंदर कोई और एम्बेडिंग है, टी फाइव में कोई और एम्बेडिंग है, वो एम्बेडिंग्स उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ वेदर यू लुक इट अप बिफोर सेंडिंग टू द ट्रांसफॉर्मर और द ट्रांसफॉर्मर लुक्स इट अप इटसेल्फ, दैट्स एन आर्किटेक्चरल डिसीजन कि आपने किस तरह से किया, एंड इट्स नॉट मच डिफरेंट, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आपने 12 लेयर्स उसकी लगाई हुई हैं, एक आपने लेयर और लुकअप की डाल दी है, तो व्हाट डज इट मैटर। या हाँ, ये शुरू में हुआ था ना। सो इनका क्वेश्चन ये है कि जब आप जीपीटी से कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करवाते हैं तो क्या वो भी वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे निकालता है, तो शुरू शुरू में ऐसा ही था। जीपीटी 3 जिस वक्त आया था और लोगों ने उससे मैथ करवाने की कोशिश की थी, तो इट वाज जस्ट ट्राइंग टू लुक अप के लेट्स से 3+4 इक्वल टू के बाद सबसे प्रोबेबल नेक्स्ट टोकन क्या है। अब वो यहाँ पे बास केसेस में चल जाता था, लेकिन 3+4 इज इक्वल टू समथिंग एल्स भी लिखा हो सकता है, और इनफैक्ट वो एक लंबा नंबर भी हो सकता है, और 3 जो है वो किसी सीक्वेंस का हिस्सा भी हो सकता है, तो ये बहुत बुरा चला था। So therefore, your modern language models don't do math the traditional way. So they just are trying to find out the probability कि हमने अपने models में से कौन सा model use करना है. So essentially, mostly they either start going towards writing code to answer that question and then run that code.
So what you're dealing with in your products, the ChatGPT and other products, are no longer plain language models. The language model is just one aspect of the many things it has available. So it's an agent-like model which decides कि इस particular question के लिए मैंने करना क्या है. For example, तस्वीर बनाने को कही जा रही है, so bring up that model. Math करने को कहा जा रहा है या data analysis, bring up the coder. And then the code runner and all of that. So वो code interpreter module जिसको कहते हैं वो मॉड्यूल ऊपर आ जाता है, इस वजह से मैथ ठीक होना शुरू हो गया है. ठीक है, लेकिन अभी भी वो लड़ने के ऊपर गलत जवाब के ऊपर चला जाता है बिकॉज essentially the governing part is a language model. तो उसे आप अभी भी थोड़ा सा ड्रा ड्रू के कह सकते हैं कि नहीं 3+4 7 नहीं होता, तो वो अभी भी कभी कभी मान जाता है. तो वो इसीलिए मान जाता है कि नीचे से उसको कॉन्फिडेंस से आंसर मिल रहा है लेकिन ऊपर से आपने उसे मैनिपुलेट कर दिया जी. नहीं, ये mixture of experts नहीं. This is agent. So this is agent behavior. So the agent, so mixture of experts is a phenomena within the transformer. So within the transformer, the feed forward neural networks, वो पूरे का पूरा neural network चलना है या उसका खाली कोई एक हिस्सा चल रहा है. यानी have you trained the neural network as a whole or in modules? In mixture of experts, it's trained in modules. So it has parts, parallel parts, जो कि अलग अलग modules हैं. और वो ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि you first find a similarity with the input query कि इनमें से कौन सा मॉड्यूल सबसे अप्रोप्रिएट है इसके लिए. सो इट्स लाइक क्लस्टरिंग. एट ट्रेनिंग टाइम यूर क्लस्टरिंग के इस क्वेश्चन के लिए ये मॉड्यूल अच्छा है, एंड एट टेस्ट टाइम इट यूजेस द सेम सिमिलैरिटी स्कोर टू आंसर कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए कौन सा वाला सब मॉड्यूल जो है वो एक्टिवेट करूं. ठीक है, सो दिस इज मिस्टर एक्सपर्ट. द एजेंट बिहेवियर यहाँ पे एजेंसी, सो एजेंट इज सिंपली समथिंग विच हैज द एजेंसी टू एक्ट, यानी उसके पास ऑटोनॉमी है खुद से फैसला करने की. सो इनिशियली इफ यू रिमेंबर, in these language models you had to say कि data interpreter use करो या code interpreter use करो, data analysis करना है, मैं image बनाना है उसको आप अलग से उसको engage करते थे. You were making the decision. In the more modern models they have given this control over to the model itself. So now the model decides मैंने कब internet browsing करनी है, कब कोड इंटरप्रिटेशन करनी है, कब डेटा एनालिटिक्स करना है, कब क्या चीज करनी है, कब इमेज का जो है वो बुलाना है. सो दिस इज, ये एजेंसी जो है ना ऑटोनॉमी के, मैं खुद से फैसला कर सकता हूँ. दिस इज एजेंट लाइक बिहेवियर. सो देयरफॉर वी आर डीलिंग विद, एवर सिंस योर चैट जीपीटी आफ्टर GPT-4 started looking up things on internet or by itself आपसे पूछे बगैर, it was showing signs of agency जो इसके अंदर embed कर दी गई थी. We were not calling it them agents because they were not fully fledged agents, but they had agent like behaviors. तो जहां कहीं वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है ना आपसे पूछे बगैर, वो एजेंसी है. अच्छा जी, आसान वाली प्री ट्रेनिंग तो हो गई. अब करते हैं फन वाली प्री ट्रेनिंग जिसमें हम थोड़ा सा वक्त लगाएंगे. सो बर्ड की प्री ट्रेनिंग. ओके, सो बर्ड की प्री ट्रेनिंग से, अच्छा बाय द वे यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन. अगर आप बर्ड के बारे में जाकर मुख्तलिफ जगहों से पढ़ेंगे, एक्सेप्ट फॉर रीडिंग लाइक द ओरिजिनल पेपर वेरी वेरी केयरफुली, अगर आप वो कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं और से पढ़ रहे हैं तो एक परसिस्टेंट कंफ्यूजन आपको टेक्स्ट में मिलेगी. मैंने कोशिश की है कि हेड ऑन उस कंफ्यूजन को डील किया जाए. सो वी गोना स्टार्ट विद अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स बर्ड प्री ट्रेनिंग as compared to what you're going to find in the various explainers of BERT. Okay, सबसे पहले हमने गौर ये करना है कि BERT को हम ट्रेन कर क्यों रहे हैं. व्हाट्स द गोल ऑफ बर्ड, बर्ड बनाया क्यों जा रहा है. जीपीटी का गोल क्या था, प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट टोकन, सो लैंग्वेज जनरेशन. बर्ड का गोल क्या था जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, टू कम अप विद रियली गुड रिप्रेजेंटेशंस, रियली रियली गुड रिच एम्बेडिंग्स, ये हमारा गोल था. अच्छा, जब हम एम्बेडिंग्स बनाने के गोल से चल रहे हैं, so let's go to the slides. So BERT would primarily be used for generating rich embeddings for tokens where the entire context is available. ठीक है, bidirectional context is available. So the word or token itself is also available. वो भी अवेलेबल होगा जिस वक्त आप बर्ड को यूज कर रहे होंगे. नहीं, थोड़ी देर के लिए अभी ट्रेनिंग छोड़ दें, जब बर्ड चल रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, आप उसे टेक्स्ट दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि इन वर्ड्स की मुझे एम्बेडिंग्स दे दो, क्योंकि कंटेक्चुअल एम्बेडिंग्स है तो पूरे का पूरा टेक्स्ट देना पड़ता है बर्ड को एम्बेडिंग्स निकलवाने के लिए. जब आप टेक्स्ट देकर एम्बेडिंग्स निकलवाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. वो वर्ड जिसकी एम्बेडिंग निकलवा रहे हैं वो भी मौजूद है, हमेशा मौजूद है, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी मौजूद है. अब क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी और है कि कॉन्टेक्स्ट ठीक हो, वर्ड टाइपो हो, ये मुमकिन है. इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल आपने एम्बेडिंग्स निकलवाने के लिए दिया, बीच में दो तीन वर्ड गलत थे, वो इनकरेक्ट लिखे हुए थे, टाइपोस थे. नाउ टाइपोस कुड बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. वन इज व्हाट वी कॉल द नॉन वर्ड टाइपोस, कि आपने एक टाइपो किया और आपने द को फॉर एग्जांपल TEH लिख दिया.
It's not a word, it's not in the vocabulary, so it's clearly a typo. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने द को ही लिख दिया, टी लिखना भूल गए, ही लिख दिया, ही इज ऑल्सो अ वर्ड. Now, this real word typo is a really complicated thing. It is a word. So, I went to the classroom की जगह आपने लिखा I went to he classroom. अब ये ही बीच में टाइपो है. क्या मेरा लैंग्वेज मॉडल इतना अक्लमंद है कि वो इस टाइपो को सेंस करे और जब इस ही की एम्बेडिंग्स बनाए तो वो ही की एम्बेडिंग्स ना हो बल्कि वो द की एम्बेडिंग्स हो? वाओ, नाउ दैट्स सोफिस्टिकेटेड. दैट्स कॉम्प्लेक्स. कि आप एम्बेडिंग्स तो निकलवा रहे हैं लेकिन एम्बेडिंग्स निकालते वक्त आपका मॉडल ये डिसाइड कर रहा है कि ये वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए, ये वर्ड इट डजंट बिलोंग हियर, यहाँ पे कोई और वर्ड बिलोंग करता है, तो जो एम्बेडिंग निकाल कर लाए वो वैसी निकाल कर लाए जैसी उस वर्ड की होनी थी जो यहाँ होना चाहिए. अच्छा, डू वी हैव एनी चांस ऑफ दैट? यस वी डू. आपको क्यों ये जुमला बुरा लग रहा है? आई वेंट टू ही क्लासरूम. यू कैन क्लियरली हियर कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट. And probably with some thought you can also come up with that ही नहीं, यहाँ पे डी होगा और दा होना चाहिए यहाँ पर, right? So यही सेम चीज क्या वो कर सकता है? Yes, it has bidirectional context. It has I went to and classroom. It can use the attention from those words to completely figure out कि इस neighborhood में द आना चाहिए था. It just has one wrong signal which is coming from he, जिसकी embedding यहाँ काम खराब कर रही है. So ये जो चीज बनाएगा, क्या इसमें ये एबिलिटी होगी कि उससे द प्रिडिक्ट हो सके? अच्छा, ये बात ये क्यों जरूरी है? बिकॉज ये BERT के प्री ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव में शामिल की हुई है. Let's discuss this. Okay, so therefore BERT's pre-training needs to encode the information about the word itself, who am I, the position, where am I, and its bidirectional context, यानी attention. So attention, position, and the word itself, तीन चीजें. And the objective needs to evaluate the model to find out if BERT can predict word based on the available information, the bidirectional context, the word itself, and some probability mass for incorrect signals यानी typos. तीन तरह की चीजों के लिए आप BERT को प्री ट्रेन करेंगे. अब मैं उसको स्पेल आउट करता हूं. क्या BERT सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देखते हुए और वर्ड देखे बगैर ये बता सकता है कि यहाँ वर्ड कौन सा है? एक हम इसका ये टेस्ट लेंगे. Listen again. We're gonna take a sentence, we're gonna mask a word, and we're gonna ask BERT, यहाँ कौन था? This is the MLM objective, mass language model objective. यहाँ BERT के पास information क्या है? Just the context, the bidirectional context. So वो neighborhood की बेस पर कह रहा है यहाँ ये word आना था. अगर सही बोलेगा तो हम कहेंगे तुम सही कह रहे हो, गलत बोलेगा तो हम back propagate करा के उसको update करेंगे. ठीक हो गया? 1 2. हम BERT को word भी दे देंगे, context भी दे देंगे और BERT से पूछेंगे यहाँ कौन सा वर्ड आना. Now that seems like a very stupid objective, but we do this for a randomly chosen set of words. We give BERT a placeholder and say जिसका उसको हमने word दिखा दिया हुआ है. So I went to the classroom. दा के ऊपर मैं उसको कहता हूँ यहाँ पे क्या आना चाहिए था. इनपुट में उसको दा मिला हुआ है. I want BERT to say the again. I want BERT to say the again. So in other words, BERT is saying this is the right word here. The third objective, I'm gonna say I went to he classroom. और मैं उसे कहता हूँ ही की जगह क्या आना चाहिए था. And if BERT says he, I say you're wrong. Back propagate. If BERT says the, I say BERT you're right. तुमने सही जवाब दे दिया. So 3 objectives. दोबारा एक दफा रिपीट करता हूँ क्योंकि थोड़े से चेहरों के ऊपर अभी कंफ्यूजन रह गई. So I don't know. Well, I need a sentence. Okay. The cat sat on the mat. For example, ये मेरा एक सेंटेंस है. मैं पहला काम ये करूंगा कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा, और मैं ये भी बता देता हूं कि लिटरेचर में कंफ्यूजन कहाँ आती है. आई एम गोना चूज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स टू मास्क. सो लेट्स अज्यूम मुझे पता लगता है कि मैं 15% वर्ड्स को मास्क करना चाहता हूँ. ये मैंने एक हाइपर पैरामीटर दे दिया. ओके, फ्रॉम दिस आई रेंडमली चूज अ वर्ड टू मास्क. सो फॉर एग्जाम्पल मैं इस वर्ड को मास्क करने के लिए चूज कर लेता हूँ. नाउ इस वर्ड को मैं 3 अंदाज से डील कर सकता हूँ. या आई कैन रिमूव इट एंड टेस्ट BERT कि क्या वो सेट निकाल सकता है कि नहीं.
और आई कैन कीप इट देयर एंड टेस्ट वर्ड कि क्या वो सेट को सेट ही रखता है या नहीं, और आई कुड change it, replace it with a different word. So मैं इनको कर देता हूँ. So either mask it, keep it, or the third is replace it. The cat house. So I just brought a word in randomly from my corpus. The cat house on the mat. And now I want word to say the house should be replaced by sat. ये तीन objectives we're going to create. Confusion कहाँ है? The text says, when you're going to read it, you choose a word to mask. जिससे ध्यान में आता है कि you're going to mask it. No. When they say mask in that place, this simply means it's a test word. You choose a word जिसको test करना है. Now, for each test word, you do one of three things. Keep it, replace it, mask it, and then test it. बस ये है MLM का ऑब्जेक्टिव, यही इसकी वो वाहिद कंफ्यूजन थी. अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको वर्ड का पेपर पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी. हम इसकी तफसील तो करने लगे जी. रैंडमली मैं अभी दिखाता हूँ किस फ्रैक्शन के लिए होता है. It is this one is similar to negative sampling. You are bringing in a non-neighbor. मास लगा एक नया टोकन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मास टोकन. सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स. ये क्वेश्चंस ऑफ डिटेल्स के हैं, उसको अब देखते हैं. ओके, सो बर्ड्स representations from क्या so yeah pre-trained on two objectives simultaneously. अच्छा, अब this is only part of it. So ये जो आपने सब कुछ देखा है इसको हम कहेंगे MLM ऑब्जेक्टिव, मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग ऑब्जेक्टिव. बर्ड का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है. बर्ड को, ओरिजिनल बर्ड को, द प्लेन वनीला बर्ड को दो ऑब्जेक्टिव्स पे ट्रेन किया गया था साइमल्टेनियसली. वन वाज दिस. The second objective was sentence prediction. What was the sentence prediction objective? You give bird two sentences and ask it, do they come one after the other? Do they belong together? So you give it a sentence one, a sentence two, and ask bird, क्या ये दोनों साथ साथ होने चाहिए या नहीं? Are they following from, is the second one following from the first? ठीक है. अच्छा, अब इसके लिए आप ट्रेनिंग डेटा कैसे बनाएंगे? You're going to take your entire corpus, you divide it into sentences. Now you take two sentences which वाकई follow one another. This is a positive example. Then you take a sentence from here and another sentence from there. You put them together, you formed a pair, a negative pair. And you say these don't belong together. और अब आप bird से सिर्फ ये पूछ रहे हैं yes no बोलो. ये साथ हैं या नहीं है, साथ हैं या नहीं है, साथ हैं या नहीं. इससे आप bird को किस चीज पे train कर रहे हैं? To figure out larger chunks of text and to figure out whether their context is uniform or not. क्या ये एक दूसरे के साथ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अब इसकी डिटेल्स में जाते हैं. अब ये क्लियर होता जाएगा. सो दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मास लैंग्वेज मॉडलिंग और नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन. सो इसको हम NSP कहेंगे और इसको हम MLM कहेंगे, जस्ट फॉर द शॉर्ट फॉर्म. इससे आगे ओके. ये है अब उसका थॉरो प्रोसेस जो MLM के अंदर हो रहा है. जो आपका क्वेश्चन भी था उसका आंसर भी ये है. सो बर्ट रेंडमली सिलेक्ट्स. सो द प्लेन वनीला के अंदर उन्होंने नंबर 15% रखा हुआ था. 15% of the tokens in each input sequence to mask. Important मैंने करके यहाँ इसलिए लिखा है. This means that BERT would only compare these 15% tokens against the ground truth, the actual word, to evaluate the loss. Instead of thinking about them as masked tokens, we should think about them as test tokens. So जब वो कहते हैं हम मास्क कर रहे हैं, उसका मतलब होता है हम टेस्ट करेंगे सिर्फ इनके ऊपर. पूरा लॉस सिर्फ इन 15% पे निकलेगा. अब इन 15% के साथ करेंगे क्या? At this point, we could just replace these mask tokens with a mask. एक नया टोकन डाल देते हैं and just predicted them. But this creates a mismatch between the pre-training and the inference. इसलिए मैंने आपको वो पहली वाली स्लाइड दिखाई थी कि जब बर्ड ने चलना है तो उसको खाली जगह तो नहीं मिल रही होगी ना, उसको वर्ड मिल रहा होगा, उसने उस वर्ड को प्रेडिक्ट करना होगा. लिहाजा इस मैचिंग को क्रिएट करने के लिए दे डू दिस. They select 15% of these test tokens. उसके बाद 80% of time they replace it with a special mask token. So predict using the context alone. 10% of time with a random word, predict using the context and the word itself. And 10% of time you leave it unchanged, predict using the context and the, sorry मैंने ये उल्टा लिख दिया, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था. So unchanged का मतलब है the word itself और इस वाले का मतलब है, ये मैं इसे ठीक कर दूं, अभी ठीक कर दूं. Let me just fix it now, क्योंकि ये confusion मैं आपकी कैसे वरना ठीक करूंगा. Give me 1 second. Fixing it right now. Okay. Small, small, small. Big. Okay.
Yes. So this is how the MLM is positioned. One more time, the last time. आपने टेक्स्ट लिया, 15% रैंडमली चूज कर लिए वर्ड्स, उसके अंदर से कहा इन वर्ड्स के ऊपर मैंने टेस्ट लेना है। उन 15% में से 80% को आपने रिप्लेस कर दिया एक नए टोकन से। वो नया टोकन आपने क्रिएट किया है, उसको हम मास्क टोकन कहेंगे। ठीक है, आपने वर्ड हाइड कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि जब आप ये मास्क इनपुट में दे रहे हैं तो क्या बर्ट इस मौके पर आपको सही वर्ड बताता है या नहीं बताता। ये वाला टेस्ट है। दूसरा, for 10% of these words we replace them with any other word from the corpus. Let's replace them with another word. यहां पर हम चाह क्या रहे हैं कि वो ये पकड़ ले कि ये वाला, जब उसे कहेंगे ना ये वाला वर्ड बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो वो इस वर्ड को नहीं आउटपुट करेगा बल्कि कहेगा जो सही वर्ड यहाँ आना चाहिए था वो उसको पकड़ ले। और तीसरा, वर्ड को छेड़ा ही नहीं, वैसे ही रहने दिया। और अब जब इस जगह के ऊपर टेस्ट लिया तो वो इस वर्ड को इसी तरह रखेगा और कहेगा यही वर्ड यहाँ पे आना चाहिए था। So MLM has three subtests encoded into this. This is really powerful. This is what gives BERT its। अच्छा, अब यहाँ पर आपके जहन में ये सारे सवाल आ सकते हैं। Why 80-10-10? Why not like 60-20-20? Why not any other number? It's your choice. So basically इसकी जो बुनियाद है वो सिर्फ ये है कि you just need to form a hypothesis based on your knowledge of linguistics कि बर्ड को कितनी फ्रीक्वेंसी से फेस करना पड़ेगा इन डिफरेंट सिनारियोज को। कितनी दफा ऐसा होगा बर्ड के साथ कि उसे रियल वर्ड मिल रहा होगा, कितनी दफा ऐसा होगा कि वर्ड वहां होगा ही नहीं, और कितनी दफा ऐसा होगा कि वर्ड वहां पर रिप्लेस हुआ होगा ना। इस थ्योरी की बेस के ऊपर तो जहन में आता है कि उसको ज्यादातर रियल वर्ड रहने देना चाहिए, कभी कभी मास्क करना चाहिए और कभी कभी नॉन वर्ड से रिप्लेस करना चाहिए। बट इफ वी कीप इट द रियल वर्ड, वर्ड डजंट गेट टू ट्रेन इटसेल्फ अ लॉट, क्योंकि वो वर्ड वहां मौजूद है, इट हैज ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन देयर। दैट्स व्हाई दे फ्लिप्ड इट। They took the mask objective, which is the most difficult to predict, the least information. So they wanted to make sure कि जो neighborhood की information है वो powerfully encode होना शुरू हो जाए। अगर वो हो जाएगी तो now इन तीनों को देखें गौर से। अगर सिर्फ मेरे neighborhood की information अच्छी ट्रेन हुई हुई है और वर्ड से मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ कि वहां पे कौन सा वर्ड है, सो अब मैं ये तीनों फुलफिल कर सकता हूँ। मास्क भी फिल कर सकता हूँ, रियल वर्ड रिप्लेस भी कर सकता हूँ, और रियल वर्ड अगर वहां मौजूद है तो उसको रख भी सकता हूँ। So that was the objective. Bert wanted to make my neighbors strong, the attention on the neighbors strong. That was the goal. अभी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चंस रोक लें, मैं इसको मुकम्मल कर लूँ। ये डिटेल्स हमने कवर कर ली। ओके, सो दिस इज द मास लैंग्वेज मॉडलिंग ऑब्जेक्टिव। इसको एक दफा देख लेते हैं। सो एज्यूम कि हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ टोकन है x1 से xn and m be the set of masked positions, ये वो हैं जिनको हमने मास्क किया हुआ है। So the MLM objective could be defined as for all masked tokens you find the log likelihood, the negative log likelihood of this actual token given the entire context minus the masked token. So यहाँ पे हमने ये सेट माइनस किया हुआ है। So basically इन सब में से वो माइनस कर दो जो वर्ड नहीं है। ये हमने खाली एक के लिए लिखा हुआ है जहाँ हमने वर्ड गायब किया। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि जहाँ पे उसके अलावा बाकी सब की बेस के ऊपर ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटेंस है माई डॉग इज क्यूट। It would first be divided into tokens. So for example, my dog is cute, 1 2 3 4 4 tokens हो गए। Now अब आप इनमें से एक वर्ड चूज करेंगे, जैसे आप कहेंगे मैंने इसके ऊपर एग्जाम लेना है, तो मैं लेट्स से क्यूट के ऊपर मैंने रैंडमली चूज कर लिया एग्जाम लेना है। So with 80% of probability I'll make it this, my dog is mask. With 10% probability I'm going to make it, for example, my dog is happy. And with 10% probability I'm going to make it my dog is cute. And then इसमें से जो भी हुआ होगा इन द एंड मैं उससे पूछ ही रहा हूँ यहाँ पे आना क्या था। ठीक है, और वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे बता रहा होगा यहाँ पे आना क्या था। NSP, next sentence prediction, is simpler. We're saying the input to BERT pre-training consists of two segments, sentence A and sentence B, separated by a separated token. With 50% probability, sentence B is the actual next sentence that followed sentence A in the original corpus. With 50% probability, sentence B is a random sentence from the corpus. और अब बेसिकली ये वही वाली सारी आइडियोलॉजी है जो आपने वर्ड टू वेक के अंदर यूज की थी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीटली एक एग्जांपल भी करवानी है जहां हम ये सारा कुछ करके देखेंगे। तो इसलिए लेट्स फर्स्ट जस्ट कंप्यूट द लॉस। तो ये ओवरऑल लॉस इज जस्ट बिटवीन दीज टू थिंग्स। एक आपके पास सो एनएसपी का लॉस, सॉरी हाँ ये भी खाली एनएसपी का लॉस है। सो एनएसपी का नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन का लॉस, ये दो चीजें हैं, इज नेक्स्ट और नॉट नेक्स्ट। ये दो प्रिडिक्शन ये कर रहा है और लॉस इन दोनों के ऊपर आप कंप्यूट कर रहे हैं। द फाइनल लॉस इज जस्ट द एमएलएम लॉस प्लस
NSP loss. That's the आपका final total loss. There is a lot of room here, as you can see, for adding, for example, weights and other things, and that's where you can actually play with the model and see कि क्या क्या कुछ कर सकता है. This is an example of next sentence prediction. हम ये वाले एक्स्ट्रा टोकन्स यूज करते हैं. सो CLS हम हमेशा शुरू में लगाते हैं. उसके बाद वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस, देन अ सेपरेटेड टोकन एंड द सेकंड सेंटेंस. और अब ये जो पेयर्स हैं ये दो कैटेगरीज के हैं. एक जो सचमुच के हैं, इज नेक्स्ट हैं, और एक फॉर एग्जांपल ये इज नॉट नेक्स्ट के हैं. सो कितने में वो क्या कैसा परफॉर्म करता है इज नेक्स्ट के ऊपर और कैसा परफॉर्म करता है नॉट नेक्स्ट के ऊपर. मैं सीधा चला जाता हूँ डिटेल के ऊपर. ओके, नाउ very carefully, let's observe one end-to-end example to see कि BERT का pre-training data बनेगा कैसे. Okay, ये हमारी for example पूरी corpus है जिसके ऊपर हम कर रहे हैं. So let's assume this to be our corpus. I am sad, I ate a bagel, but I'm still hungry. I don't like being hungry, but I know I'll be eating again soon. I think I'll go to this place. I'm not sure if this place has bagels though. Okay, ये पूरे की पूरी मेरी corpus है. First, we can take two sentences where we know the second sentence follows the first sentence, and we can make a pair like this. I'm sad, I ate a bagel, but I am still hungry. We can also combine two sentences which do not follow each other. I'm sad, I'm not sure if Fuddruckers has bagels though. And then we can construct a data set. So data set किस तरह से बनेगा? Follows true, ये वाला example है. Follows false, ये वाला example है. Data set बनना शुरू हो गया. So you can in this manner take a corpus, convert it into this pair data set. इसमें हम 50% इस कैटेगरी में रखते हैं, 50% इस कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है. So model needs to understand language sufficiently to understand what sentences do or do not make sense with each other. Next we for X%, in this case let's say 15%, हम इनमें से words choose करते हैं और उनको जाकर ये वो हमारे वो वर्ड है जिसपे हमने टेस्ट करना है. यहाँ मैंने तीनों चीजें नहीं की हुई, यहाँ मैंने खाली सिर्फ मास्क अप्लाई किया हुआ है. बट यू नो कि हमने 80% ऑफ दीज 15% में मास्क लगा देना है, बाकी 10% में वर्ड को रहने देना है और बाकी 10% के अंदर उसको रिप्लेस कर देना है. बट लेट्स जस्ट डील विद द मास्क. सो आई मास्क सैड. सो ये क्या था? आई एम सैड. सो एम की जगह मैंने मास्क लगा दिया. आई एम सैड, आई एम नॉट श्योर इफ फडरकर्स हैव बेगल्स था, क्या था? हैज बेगल्स. ओके, सो हैज बेगल्स दो. ठीक है, तो ये मैंने दो मास्क इसके अंदर ऐड कर दिए. सो इसी में अब मास्क ऐड हो गए. So for a given input, the model will have two jobs during pre-training: predict if the second sentence follows the first, say a yes no, and predict what the masked words should have been. So जिसके अंदर एक पूरा अपने word predict करना है यहाँ पे. ठीक है. If this is done over a large corpus of text, the model must develop a general understanding of language to perform well at these tasks, understand sentences enough to know if sentences make sense when paired together, and use context cues to understand which words should exist within the mask sections. Okay. स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पूरा करेंगे इसको कंप्लीट. हम BERT के साथ चलाकर देखेंगे. ओके, BERT जो है यहाँ पे हमने अब तक तीन स्पेशल यूटिलिटी टोकन्स हम देख चुके हैं. एक CLS जिसको हम सेंटेंस के स्टार्ट पर लगाते हैं, एक मास्क जिसको हम वर्ड्स को छुपाने के लिए लगाते हैं, और एक सेप जो दो सेंटेंसेस के हम बीच में लगाते हैं पेयर बनाने के लिए. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास था CLS आई मास्क सैड, सेप आई एट बेगल, और तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया. ये सारे के सारे इनके टोकन्स हैं, और ये तीन 101, 103 और 102 जो है ये स्पेशल टोकन्स हैं जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. ये मैंने बीच में एरोज के ऊपर एनिमेशन नहीं डाली, सो फॉरगिव मी फॉर दैट. ईच ऑफ दीज नंबर्स इज देन कन्वर्टेड इनटू एम्बेडिंग्स. मैं सीधा डायग्राम पे आ जाता हूँ. So you take your sentence, you have all of your embeddings for the entire vocabulary. You look up the embeddings for CLS, I, mask, sad, sep, I, ate, a. इन सब की आपने embeddings निकाल ली. ठीक है. अब क्या होगा? अब इसके अंदर position की information आएगी. So now we're inside the encoded. Positional information में एक फर्क है between your BERT and your GPT या अदर मॉडल्स जो कि पोजिशनल इंकोडिंग्स साइनोसॉइड्स की बेस पे यूज करते हैं. BERT ट्रेन्ड पोजिशनल इंकोडिंग्स यूज करता है. व्हाट डज दैट मीन? ये इसको भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ट्रेन करता है. सो इनिशियली रैंडमली इनिशियलाइज पोजीशन से इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 आ गई है. जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोसीड करेगी पोजीशंस भी ट्रेन होती चली जाएंगी. तो आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे पोजिशनल इनकोडिंग्स की, हमने दो तरीके जो है प्राइमरीली उन पे फोकस किया था. एक तो हमने देखा था जो साइनोसॉइड्स यूज करता है, और दूसरा हमने कहा था ये भी हो सकता था कि हम इसको खाली एम्प्टी रखते और यहाँ पे रैंडमली इनिशियलाइज कर देते और वक्त के साथ ट्रेन होने देते, तो ये खुद सीख लेता है कि किसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए. ठीक है. तो ये ट्रेन एम्बेडिंग्स यूज करता है. ओके,
सो सेंटेंस लिया, एम्बेडिंग्स निकाली, पोजिशन की इंफॉर्मेशन ऐड की. एक additional stereotypical thing that BERT does is that it also adds an information of whether it's sentence one or sentence two. तो उसकी एक एक इंफॉर्मेशन के बीच में और ऐड कर देता है, तो सेंटेंस वन के अंदर सेंटेंस वन की इंफॉर्मेशन चली गई और सेंटेंस टू के अंदर स्मूदी के अंदर आपने एक और चीज डाल दी है सेंटेंस टू, विच शुड ऑल्सो गिव यू आइडियाज के कितनी फ्लेक्सिबल है हमारी ये स्मूदीज और हम इसमें क्या क्या कुछ ऐड कर सकते हैं. Once the words and the position information has been encoded, the sequence is passed through traditional encoder style transformer blocks, जिसके नतीजे में ये पूरी की सारी रिप्रेजेंटेशन सीखता है. Finally, what happens? This is important. सो यहां तक हम पहुंचे थे, सेंटेंस वन सेंटेंस टू की इंफॉर्मेशन डल गई, इनकोडर के ब्लॉक से गुजरे, एंड देन फाइनली नाउ यूर एट अ प्लेस जहां पे हम दोनों ऑब्जेक्टिव्स को प्रिडिक्ट करने लगे. नाउ वॉच केयरफुली. वी डेजिग्नेट द CLS टोकन कि जिसको हम पास करेंगे एक फीड फॉरवर्ड लेयर से टू आउटपुट whether the two sentences follow each other or not. So हम पूरे का पूरा नहीं दे रहे, but because remember there is full attention, बाई डायरेक्शनल अटेंशन. सो हर एक टोकन के पास सारे टोकन की इंफॉर्मेशन है. हम सिर्फ CLS इनपुट करेंगे, उसके आगे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क लगा देंगे और उसके आगे सिर्फ एक यस नो का आंसर निकालेंगे. गलत आएगा तो वापस जाकर उसको अपडेट करेंगे. ठीक है. सो इससे क्या हो रहा है, CLS को हम ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी तुम्हें CLS मिले तुमने बताना है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जाती हैं या नहीं जाती. ट्रू फॉल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं. और दूसरा, हर मास्क के लिए you have a feed forward neural network. Given the mask, it predicts कि वहां पे सही वर्ड क्या आना चाहिए था. और अगेन रिमेंबर, मास्क के पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है सारे टोकन से अटेंशन के थ्रू. ठीक है. सो एंड देन फ्रॉम हियर वी बैक प्रोपिगेट, वी अपडेट ऑल मेट्रिसेस, वी गो बैक. इसमें मैंने वो वाले हिस्से दोबारा डील नहीं किए हैं जहां पे क्वेरी की वैल्यू मेट्रिसेस आ रही हैं, वो सब की सब इस जगह के ऊपर अंदर इसके आ रही हैं. सो दिस इज द एंटायर ट्रेनिंग ऑफ द प्लेन वनीला बर्ट. ओरिजिनल बर्ट ये करता था. मैं आगे आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा कि जिसमें मैं थोड़ी सी रोबर्टा की बात भी करूंगा. रोबर्टा इससे स्लाइटली डिफरेंट है, उसकी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. जी. Yeah, right. So it we could have designated any because all of them have information of all of the tokens. Remember the self attention? Self attention में सब combine हो गए. So we could have chosen SEP. They chose CLS. It could be any. So the exact token which is chosen is not important. Consistency is important. If throughout the training you just designate one token, कि जब भी ये टोकन मैं यूज करूंगा ये मुझे बताएगा दोनों साथ जाते हैं कि नहीं जाते. So that means कि वो उस टोकन को डेजिग्नेट करके इस ट्रेनिंग के लिए यूज करेगा. This is actually used. This information is used in the fine tuning of BERT as well. So BERT के जब आप फाइन ट्यून डेटा सेट बनाते हैं, हम थोड़ी देर में भी देखते हैं उसको. फाइन ट्यून डेटा सेट बनाते हैं, उसमें भी आप एज्यूम करते हैं कि CLS की बेस के ऊपर यस नो आंसर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं सेंटिमेंट प्रिडिक्शन कर रहा हूँ या मैं और चलिए सेंटिमेंट प्रिडिक्शन कर रहा हूँ बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जस्ट टू सेंटिमेंट्स. सो अब मैंने जिस पर सेंटेंस दिया है उसे मैं किसी तरह इसी फॉर्म में लाकर ब्रेक करूंगा, दो हिस्सों में लाऊंगा और CLS दे के पूछूंगा इसका सेंटिमेंट क्या है. सो यू डेजिग्नेट CLS फॉर ऑल ऑफ दीज क्लासिफिकेशन टास्क प्री ट्रेनिंग के अंदर. जी. हम्म. हम्म. या. नहीं नहीं, CLS सीख रहा है वक्त के साथ साथ, वो अपडेट होता जा रहा है, मुसलसल अपडेट होता जा रहा है. या. CLS is just a sentinel token जिसका मकसद ये है कि whenever a classifier sees that, it knows कि it has to classify between the objectives जो उसको दिए गए, between the classes जो उसको दी गई. So its embeddings just indicate that. Now classify. Yeah. So multiple objectives is a complex one. और there was even debate at the time कि BERT के अंदर भी दो objectives seemed like pulling BERT in one direction versus the other direction. जिस वजह से in some of the follow-up flavors of BERT, like in Roberta, they removed the NSP objective. It just had one objective which was MLM, और MLM को उन्होंने थोड़ा सा फिर एडवांस कर दिया था. वो हम अभी डिस्कस करेंगे किस तरह से किया था. So yes, we can have multiple objectives, but that does create a tug of war across objectives कि एक objective बेहतर होता है तो वो हो सकता है दूसरे को खराब करना शुरू कर दे. So that's entirely possible. Yes, it becomes a really complex optimization problem in that regard कि you need to simultaneously satisfy both objectives, but because we do not have the ability to do
several epochs over the data, बहुत थोड़े epochs में हम चाह रहे होते हैं खत्म हो जाए क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है। तो therefore हम किसी भी इस तरह के ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को गारंटी नहीं कर सकते कि दोनों पे वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सो इट्स अगेन, क्योंकि हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे हैं तो इट्स जस्ट होपिंग कि ये किसी अच्छी जगह जाके कन्वर्ज कर जाएगा। तो इस वजह से सिंगल ऑब्जेक्टिव्स इवेंचुअली वर chosen over multiple objectives। ढेरों सवाल हैं, I'm just gonna take two more because मैंने चीज मुकम्मल करनी है, बाकी I can take afterwards। आपका देर में खड़ा हुआ है, मुझे इधर से बहुत सारे नजर आ रहे थे, आपका हाथ बड़ी देर से खड़ा है। जी जी, ये सो बेसिकली फॉर एवरी पेयर ऑफ सेंटेंसेस, सो यू डिफाइन कि मैंने कितने पेयर्स बनाने। सो लेट्स से आप ये कहते हैं कि मुझे टोटल जो है मेरे अगर सेंटेंसेस एक्स हैं तो मुझे 2x पेयर्स चाहिए। लेट्स अज्यूम तो मैं 2x पेयर्स बनाऊंगा और उसको लाकर फिल कर लूंगा सिर्फ या एक्चुअल नेबर से या दो नॉन नेबर से। हर सीएलएस टोकन, सॉरी, नहीं नहीं, हर सीएलएस टोकन इवेंचुअली ये फिगर आउट कर लेगी, उसकी एम्बेडिंग जो है वो ये फिगर आउट कर कि नहीं, जो उन्हीं क्वेश्चन में डिवाइड करें ना, मैं कौन हूं तो ये फिगर आउट कर लेगा कि मैं सिर्फ क्लासिफाई करवाने वाला हूँ, मैं किस नेबरहुड में हूँ, ये हमेशा वेरी कर रहा होगा फॉर एवरी सेंटेंस पेयर। बिकॉज रिमेंबर सीएलएस के ऊपर सब तरफ से पूरी अटेंशन आ रही है दोनों सेंटेंसेस की। सो सीएलएस एंड एवरी अदर टोकन फॉर दैट मैटर in the whole sequence knows कि what else is there in the sequence because there is full bi-directional attention throughout the whole sequence। so therefore उसको पूरा पता है कि दोनों sentences कौन से। essentially ये कह रहा है कि मेरे neighborhood में जितने word आ रहे हैं, और रिमेंबर के इसी वजह से ओके मैं इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबरेट कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम मेरे पास ये एक सेंटेंस पेयर है, आई एम एंड नॉट येट, सीएलएस है और सेप है। जिस वक्त आपकी अटेंशन कैलकुलेट होगी, सबसे सबकी तरफ अटेंशन जा रही है, मैं सिर्फ सीएलएस की अटेंशन बनाने लगा हूं। So this is your complete attention including the self attention of the CLS token। ठीक है, एट दिस पॉइंट सीएलएस को अटेंशन क्या मिल रही है, मेरे नेबरहुड में ये एक दो तीन चार पांच वर्ड्स हैं। नाउ रिमेंबर अगर ये ऐसे ही रहे तो सिर्फ सीएलएस ज्यादा से ज्यादा ये जान सकता है कि ये सब एक जैसे हैं या नहीं है, मेरा यूनिफॉर्म नेबरहुड है या नॉन यूनिफॉर्म नेबरहुड है, इससे बेहतर नहीं कर सकता। बट रिमेंबर आपने इसी वजह से जिस वक्त आप एनकोडिंग करते हुए आ रहे थे एक और इन्फॉर्मेशन भी ऐड की थी, सेंटेंस वन सेंटेंस टू। रिमेंबर आपने बीच में एक फ्लेवर डाला था, सो दिस हैज S1, दिस हैज S1, दिस हैज S2, दिस हैज S2। so it knows also, and every word for that matter knows also कि सेंटेंस वन और सेंटेंस टू कौन कौन से वाले हैं। नाउ इट हैज enough information to classify whether sentence one flavored things and sentence two flavored things go together or not। so this is what we are doing। so यहाँ पर दो टोकन्स ऐसे थे जिनके ऊपर हम एक क्लासिफिकेशन करवा सकते थे, सेप या सीएलएस। दे चोज सीएलएस, वरना सेप भी ये काम कर सकता था, सेप के पास भी ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी और सेप भी ये बता सकता था कि सेंटेंस वन सेंटेंस टू फ्लेवर्ड की चीजें। रिमेंबर आवर स्मूदी एनालॉजी ऑलवेज कम्स टू द रेस्क्यू। so think of it again like the smoothie, you're getting two smoothies, okay, suppose I give you two glasses to taste and then tell me whether the flavors match। so I give you strawberry strawberry or strawberry orange, right? And you sip from one glass, you sip from the other glass. I ask you yes or no. So you tell me yes, you tell me no, you tell me yes, you tell me no. Okay. In this case, the whole smoothie of one type is contained in one glass, the whole smoothie of the other type is contained in the other glass. That analogy here is this S1 and S2. The whole smoothie of one sentence is contained with the sentence one flavor. It has that additional flavor, the tag in it, which says I am sentence one. The other one is contained in S2, I am sentence two. And it is simply saying, do they have similar flavors or different flavors? Do they belong together or not? ठीक है, बेसिकली ये वाली चीज है यहाँ पर। तो इससे वो वाला सवाल पूछा जा रहा है कि अगर किसी को एतराज है कि इन दोनों को एक साथ होना चाहिए तो अभी बोलो या हमेशा खामोश रहो। सो वेडिंग वाउज, सो इट्स बेसिकली आस्किंग दैट क्वेश्चन एंड इट इज सेइंग कि जी दे डोंट बिलोंग टुगेदर, yet they do belong together, and if it says that correctly enough it means कि it has started understanding all of that information। क्वेश्चन में अब जरा थोड़ी देर में लेता हूँ, थोड़ा सा ठहर जाओ। ओके,
वेरिएंट्स ढेरों हैं, मैं सिर्फ एक की बात करता हूँ। सो रोबर्टा, रोबस्ट या रोबस्टली ऑप्टिमाइज्ड बर्ड, इसके अंदर उन्होंने एनएसपी का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया। देयर वर मेनी चेंजेस बट टू मेन चेंजेस। एनएसपी का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया और एमएलएम को स्टैटिक की जगह डायनेमिक कर दिया। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इन द प्लेन ओल्ड बर्ड, the masked language objective is applied once and kept the same throughout the epochs। यानी जिन वर्ड्स को आपने टेस्ट वर्ड्स के तौर पे चूज कर लिया है वही वर्ड्स टेस्ट वर्ड्स रहेंगे, और उन पर जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है, मास्किंग, रिप्लेस या कीप, वही ऑपरेशन अप्लाइड रहेगा थ्रू दी इपॉक्स, कुछ भी नहीं बदलेगा। However, रोबर्टा के अंदर यू डू इट अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी इपॉक। सो हर इपॉक के शुरू होने पे आप कहते हैं मुझे 15% वर्ड चाहिए जिन पे मैंने टेस्ट लेना है। उन 15% में से लेट से इतने परसेंट को मैंने मास्क करना है, इतने परसेंट को कीप करना है और इतने परसेंट को रिप्लेस करना है। सो ये बेसिकली ये फर्क है दोनों के अंदर। सो ये एक मेजर डिफरेंस था और ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि ये बाद में काफी जो डाउनस्ट्रीम मॉडल्स हैं उन्होंने इस चीज को लिया। सो नो नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन और डायनामिक मास्किंग, ये दो मेन चीजें थी जो फर्क थे। उसके अलावा आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस और बहुत सारे थे जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ मैंने एल्बर्ट, डिस्टिलीबर्ट, मल्टीलिंगुअल बर्ड, डोमेन स्पेसिफिक बर्ड्स जो इसके अलावा हैं उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल दी है, बट यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। लेट्स रियली क्विकली टॉक अबाउट बर्ड फाइन ट्यूनिंग। जिस अंदाज से हमने इसकी प्री ट्रेनिंग की है, हम अब काफी करीब हैं ये समझने के कि इसका फाइन ट्यून डेटा सेट कैसे बन सकता है। ओके, जो फाइन ट्यूनिंग मैं आपको अभी करवा रहा हूं, यहाँ पे assumption है the simplest of the fine tuning assumptions, that you pre-train the model, and then when you want to fine tune, you take a smaller data set and you train a little bit more using the exact same objectives। कुछ भी नहीं बदलेंगे, बस थोड़ा सा और ट्रेन कर देंगे। ये एक अंदाज है फाइन ट्यूनिंग का। कभी कभी ये नहीं भी चलता, कभी कभी इसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपलेस्ट वन। ओके, सो आई वांट टू लेट्स से डू सेंटिमेंट एनालिसिस, और मेरे पास सेंटिमेंट एनालिसिस जिन चीजों पर करना है, मेरे पास ये प्रोडक्ट रिव्यूज हैं, और प्रोडक्ट रिव्यू में मेरे पास टाइटल है और बॉडी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज एम्प्टी भी हो सकती थी, व्हिच डजंट मैटर। सो देयर आर पॉजिटिव रिव्यूज लाइक यूरेका, आई फाइनली फाउंड समथिंग दैट वर्क्स, एंड नेगेटिव रिव्यूज लाइक नॉट गुड, ब्रोक आफ्टर द फर्स्ट यूज। ठीक है, इस तमाम को अगर मैंने बैठ के फाइन ट्यूनिंग डेटा के अंदाज में एनकोड करना है, one really easy way is to encode it like this. So the true is CLS Eureka SEP I finally found something that works। अगर कोई टाइटल ना होता तो CLS स्पेस SEP और यहाँ पे सेंटेंस होता, या CLS सेंटेंस और यहाँ पे स्पेस होता है, डजेंट मैटर। और अब जब मैं ये सब कुछ कर लूंगा तो जैसे ही मैं इस फाइन ट्यूनिंग के बाद CLS टोकन दूंगा, इट्स गोना से ट्रू और फॉल्स, in which case true or false would mean positive or negative sentiment। So remember our initial discussion कि हमारा गोल फाइन ट्यूनिंग में मॉडल को ये समझाना होता है कि ये जो काम तुम्हें करने को कहा जा रहा है ना, ये कोई नया काम नहीं है, ये वही काम है जो तुम्हें करना आता है। यानी तुम सीएलएस देखकर यस नो कहते हो, तुमने अभी भी सीएलएस देखकर यस नो कहना है। यस नो का मतलब बदल गया, उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। वो मेरी इंटरप्रिटेशन है कि मैं अब उसको सेंटिमेंट समझ रहा हूँ, मैं उसको ऑथर समझ रहा हूँ, मैं उसको क्या चीज समझ रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ क्विक ग्लिम्स, ये अभी थॉरो डिटेल्स नहीं है। ये अब जेन में बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अच्छा अगर मल्टी क्लास हो तो क्या होगा, फलाना हो तो क्या होगा, वो सारी डिटेल्स यू कैन स्टडी। लेकिन the important thing here is that this is how we look at how the pre-training objective was created and the pre-training data was structured, and then we create the fine-tuning data sets based on that, following the same norms। Sir, दे डू बिलोंग टुगेदर, बट अब क्योंकि फाइन ट्यूनिंग में हम उसके ऑब्जेक्टिव को मजीद ट्रेन कर रहे हैं ना, उसकी मैट्रिसेस अपडेट हो रही हैं, और यहाँ पे तो हमने ये भी एज्यूम किया है कि उतने ही वेट से फाइन ट्यूनिंग हो रही है जितने वेट से प्री ट्रेनिंग हो रही थी। तो लेट्स से फाइन ट्यूनिंग का डेटा 2000 प्रोडक्ट रिव्यूज थे खाली, जबकि ओरिजिनल में वो सेवरल ट्रिलियन सेंटेंसेस पे ट्रेन हुआ था। इन 2000 के ऊपर जब ये बार बार चलेगा तो रैपिडली ओवरकम करना शुरू कर देगा अपनी ओरिजिनल ट्रेनिंग को, which can very easily lead to catastrophic forgetfulness as well, कि वो सब कुछ भूल जाए और बस खाली 2000 को याद रख ले और बहुत बुरा हो जाए। तो इसलिए फाइन ट्यूनिंग ये वाली बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है कि आपने सिर्फ उतनी करनी है कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाए, लेकिन परफेक्शन तक अगर ले जाएंगे तो जनरलाइजेबिलिटी खराब हो जाएगी।
यस, द गोल्ड लेबल हियर इज वो जो, अगर हम इसमें जाए ना, यहाँ पर, ये यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव बोलना शुरू कर दे. वी डोंट केयर अबाउट दिस. दिस हैज बिकम डोंट केयर फॉर अस. दिस इज नाउ व्हाट वी केयर अबाउट. Yes, it will keep on saying that they belong together, but belonging together is one form of relatedness, and positivity and negativity is another form of relatedness. Think of it like this. Sentiment किसी चीज का होना और उस sentiment का, for example, positive या negative होना is a relatedness to basically क्या हमने उसके लिए term use की थी, semantic field. उस सिमेंटिक फील्ड के अंदर इन चीजों का मौजूद होना है. हम सिर्फ बर्ड की ट्रेनिंग में उसको ये कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव में तुमने ये बताना है कि ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, क्या ये नेगेटिव के साथ बिलोंग करते हैं या पॉजिटिव के साथ बिलोंग करते हैं. Think of it like this. So whenever you were training, your initial objective, जहां पे आप sentences के एक दूसरे से similar या different होना predict कर रहे थे, yes, आप similar different predict कर रहे थे, but at the same time आप तीन चीजों की belonging predict कर रहे थे. True, sentence one, sentence two. False, sentence one, sentence two. It was a three-way association. So essentially, you're not relying on the second association. Now you're relying more on the first association. Does this pair go together with true? Does this pair go together with false? That's the semantics of it. एक मिनट, मैं बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस ही ले लेता हूं. हमारा टाइम भी खत्म हो गया है. हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? ये हो गया है बर्ड की फाइन ट्यूनिंग की बेसिक बात होगी. ओके, T5 रह गया. सो T5 को शायद मैं अगली क्लास के शुरू में थोड़ा सा टच कर लूं. जो एक मेन डिफरेंस है T5 में और इन दोनों की ट्रेनिंग में, वो ये है कि T5 इज अ फुल फ्लेज ट्रांसफॉर्मर. सो इट्स एन encoder decoder transformer. वहां पर there are many objectives that you can encode in there as well, but the biggest objective that you have in there is what we call span corruption. So span corruption means that instead of masking out individual words, you mask out in entire spans of words. So for example, the cat sat on the mat में आपने sat on the को हटाया और उसकी जगह एक मास्क टोकन रख दिया, मास्क वन. और अब पूछा डिकोडर से ट्रेनिंग के बीच में कि मास्क वन में क्या आना चाहिए, एंड द डिकोडर इन एन ऑटो रिग्रेसिव मैनर सेज सैट ऑन द, and then you give it the second mask and it says जो कुछ उसने छुपाया हुआ था. So because it's an entire transformer, the testing is more difficult as well. So उसकी अच्छी खासी उसके लिए ये मुश्किल चीज है कि पूरा पूरा स्पैन वो अनकवर कर रहा है वहां पे. That's how T5 is trained. और T5 का one of the strongest points is कि it's almost like prompting. कि T5 के अंदर आप ये बताते थे, for example, translate and you give it a sentence to German. So ये कहकर it started translating the sentence. So we were getting to the very close to the what we are able to do right now with your tools like ChatGPT. कि आपने उसको टास्क दिया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक चीज और थी कि वहां पर अक्सर जगह वर्ड्स की जगह आप उसको बेंचमार्क्स या टेस्ट डेटा के नाम दे रहे, ट्रेनिंग डेटा के नाम दे रहे होते थे. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ कोला कॉर्पस जो उसमें यूज हुई थी. तो ये से कोला और उसका मतलब होता था कि अब फलानी वाली क्लासिफिकेशन करनी है. यू से MNLI, तो उसने फलानी वाली क्लासिफिकेशन करनी है. तो ये कुछ डिटेल्स है, अगली क्लास में मैं थोड़ा सा इसको कवर करूंगा, एंड देन इंशाल्लाह विल स्टार्ट फाइन ट्यूनिंग.